تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے محنت۔ کیا ہے ٹاپک؟ حوالہ سنا ہے گا تسی، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ کون سے لوگ؟ محنت اٹھانے والے۔ بیٹے اس کی سیٹنگ کرو، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے۔ اے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا امثال کی کتاب، امثال کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو ہم خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے۔ آمین۔ اچھا تھوڑا توجہ چاہیے آپ کی، میرے پیچھے پڑھیے گا۔ محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے۔ آمین۔ اس کی مین ایکو بند تھوڑی کم کر دو، مین ایکو کم کر دو۔ لکھا ہے محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے۔ کس سے؟ جو شخص محنت کرتا ہے اس کے اندر خواہش ہوتی ہے، وہ اس سے کام کراتی ہے۔ محنت کرنے والے کی جو خواہش ہے وہ انسان سے کام کراتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں؟ اچھا نوکری کرنا ہی محنت نہیں ہے گی؟ اچھی بات ہے، نوکری کرنا بھی محنت ہے۔ تو جڑے بچے سکول پڑھتے ہیں کیا وہ نہیں محنت کر سکتے اپنے پڑھائی وچ؟ وہ بھی تو محنت ہے نا، ہے کہ نہیں محنت؟ اچھا جو ہارمونیم پلے کرتا ہے وہ اپنے کام میں محنت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جو طبلہ بجاتا ہے کیا وہ اپنے کام میں محنت نہیں کر سکتا؟ اور جو شخص بائبل مقدس کا قاری ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بائبل مقدس کی سٹڈی کرتا ہے، کیا وہ اپنی سٹڈی میں محنت نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی پادری ہے تو وہ بھی اپنی خدمت میں محنت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پر جو بات لکھی ہے وہ لکھی ہے محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے۔ نوکری کرنے والا شخص، ڈیوٹی کرنے والا شخص، اس کو اس کی محنت جو ہے وہ پیٹ کی خاطر اسے ابھارتی ہے۔ اگر ایک شخص پڑھا لکھا ہوگا تو اس کی جاب اچھی ہوگی، ایسے ہی نا؟ جو پڑھا لکھا ہوگا اس کی جاب اچھی ہوگی، جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا اس کی جاب اچھی نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی محنت ہے یا کوئی بھی کام ہے، سن رہے آپ؟ کوئی بھی محنت ہے یا کوئی بھی کام ہے، وہ تین وجوہات ہوتی ہے تب بندہ کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا ہے۔ تین وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر کوئی بھی کام ہے، محنت ہے، کوئی بھی کام ہے، پڑھائی ہے، ڈیوٹی ہے، ہارمونیم بجانا ہے، طبلہ بجانا ہے، دعا کرنا ہے، یا لائک یہ ہے کہ آپ کچھ بھی سٹڈی کرنی ہے، کچھ بھی محنت ہے، اس میں تین باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بندہ کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ اس کے اندر شوق ہوگا تو وہ کرے گا۔ میں نے کیا کہا؟ خواہ وہ محنت ہے، خواہ وہ دعا کرنا ہے، خواہ وہ ڈھولک بجانا ہے، خواہ وہ طبلہ بجانا ہے، خواہ وہ نوکری کرنا ہے، خواہ وہ گھروں میں کام کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کی تین وجوہات ہوتی ہے، تین وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ قابل غور،
शौक, कुछ लोग नौकरी के बड़े शौक ना जाते हैं, शौक। दूसरे नंबर पर डर, उन्होंने डर होंदा है कि मैं यह काम करना ही करना है। तीसरे नंबर पर मजबूरी। ये तीन बातें हैं जो इंसान से मेहनत करवाती है। और दुनिया के अंदर जो भी कोई आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तीन वजूहात की वजह से करता है। पहले नंबर पे शौक या डर या मजबूरी। जो शख्स भी आप बैठे हैं यहां पर, आपको पता है आप जो भी कर रहे हैं, या आप शौक से कर रहे हैं, या आप किसी के डर से कर रहे हैं, या मजबूरी ना कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लोग जॉब्स करते हैं या तो शौक ना लगे होंगे ने, क्यों? बहुत सारे लोगों का अपनी ड्यूटियों पर दिल लगा हुआ है, छुट्टी हो वो दिन ही नहीं गुजरता उनका। वो कहते नहीं नहीं आज छुट्टी से मेरा बड़ा बोर दिन लग गया है। बहुत सारे लोगों का दिन बोर गुजरता है छुट्टी वाले दिन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीज भाइयों और बहनों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेहनती का हाथ कभी कंगाल ना होगा। किसका हाथ? मेहनती का हाथ। वो मेहनत किसी भी काम में है, वो किसी भी काम में आप मेहनत करें, कभी आप कंगाल नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का फैसला है। हम देखेंगे ज़बूर की किताब, ज़बूर 104 और उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे हम। लिखा है, पढ़ दे बेटी आप। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। इंसान अपने काम के लिए, काबिल गौर बात है, मेहनत के लिए निकलता है इंसान अपने काम के लिए, और शाम तक, कदों तक? शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। इंसान के अंदर इतना लालच आ गया है, इतना लालच आ गया है। बाइबल मुकद्दस में रात को सिर्फ और सिर्फ दुआ करने के लिए कहा गया है, काम के बारे में कहा ही नहीं गया है। रात को सिर्फ दुआ करने के लिए कहा गया है, रात को काम करने के लिए नहीं कहा गया। जो रात को काम करवाते हैं या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान अपनी लालच में लगा हुआ है। रात सिर्फ खुदा ने आराम के लिए बनाई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उसने दिन बनाया और फिर रात बनाई ताकि इंसान आराम कर सके। तो रात खुदा ने इंसान के लिए आराम के लिए बनाई है। तो यहां पर भी लिखा है इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। कब तक? शाम तक। ड्यूटी करे, मेहनत करे, लेकिन शाम को घर आ जाओ। और घर आकर, हकीकत बात है, शाम को जब हम घर आते हैं अपनी थकावट से फ्री हो जाते हैं, जितना मर्जी थकावट हुए, घर आके बस थोड़ी देर बच्चों को देखो, घर वालों को देखो, घर के हालात देखो, बिल्कुल बंदा फ्रेश हो जाता है, कोई परेशानी नहीं। तो अजीज है भाई और बहनों, वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम देखेंगे, ये मैं ज़बानी बता देता हूँ। मत्ती 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। पहले नंबर पर मैंने ये बताया कि इंसान मेहनत करता है। क्या करता है? मेहनत। उसकी ख्वाहिश उससे मेहनत कराती है। दूसरे नंबर पर मैंने ये बात बताई है कि इंसान शाम तक मेहनत करता है। और तीसरे नंबर पर मैंने ये बात अभी बता रहा हूं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि आए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
आराम दूंगा। इससे मुराद ये है कि हम जितना भी काम कर ले, जितनी भी मेहनत कर ले, जहां पर भी चले जाएं, जैसी भी मेहनत करें, थकावट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, सारा दिन मेहनत करें, सारा दिन मेहनत करने के बाद में रात को खुदावंद यीशु कहते हैं तू मेरे पास आ। यीशु के पास आने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप दुआ करें, आप दुआ कर सकते हैं। यीशु के पास आने का बेहतरीन तरीका आप इबादत कर सकते हैं। यीशु के पास आने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम दुआ करें तो हम यीशु के पास आ सकते हैं। फिर यीशु की वो बात हमारी जिंदगी में पूरी होगी जो यीशु मसीह ने कही है कि आए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारी थकावट का हल कर सकता हूं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम्हारी थकावट का हल कर सकता हूं। अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अजीज भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास आए। थकावट भी खत्म हो जाएगी, ज़हनी टेंशन भी खत्म हो जाएगी, घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और किसी चीज की परेशानी नहीं रहेगी। और जितना हम यीशु से दूर जाएंगे, जितना हम यीशु से दूर जाएंगे, उतनी हम परेशानियों में मुब्तला होंगे। कभी आपने देखा है एक लाइट चलती हो, एक लाइट, उस लाइट की तरफ बढ़े तो वो जो साया है वो कहां पर जाता है? आपके पीछे। सामने मिसाल के तौर पर लाइट है, अगर मैं उस लाइट की तरफ बढ़ूंगा तो मेरा परछावा कितने जाएगा? मेरे पीछे। तो जे मैं लाइट वालों पीछा करके आने जावा तो मेरे अगे की होएगा? क्योंकि मेरे पीछे लाइट है तो मेरे आगे क्या होगा? साया, अंधेरा होगा। और जितना मैं उससे लाइट से दूर जाऊंगा उतना मेरी जिंदगी में अंधेरा और साया बड़ा होता जाएगा। कभी देखा? तजर्बा करके देखियो, जिन्ना तुसी रोशनी के नजदीक जाओगे ਤੁਹਾਡਾ परछावा पीछे ਵੱਡਾ हो जाएगा, अंधेरा ਵੱਡਾ हो जाएगा। और जिन्ना तुसी रोशनी तो दूर जाओगे उन्ना ਤੁਹਾਡਾ परछावा ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दुनिया का नूर हूं। अगर आप नूर की तरफ जाएंगे, अगर आप नूर की तरफ बढ़ेंगे, अंधेरा आपके पीछे रह जाएगा, अंधेरा आपको छोड़ देगा, आप नूर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर हम नूर को छोड़ेंगे तो अंधेरे की तरफ बढ़ेंगे तो हम यीशु से दूर होते जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। शायद ये बात आपको पंजाबी जिन्हों कहते हजम ना होवे। मेहनत करना ये तो खुदा ने आदम को सजा दी थी, ठीक है? ये खुदा ने आदम को सजा दी है, मर्द को ये सजा मिली है। खुदा ने जब भाग्य अदन के अंदर गुनाह आदम ने कर लिया तो खुदा ने क्या सजा दी थी? याद कितने कह रहे थे? सुन रहे हैं? की सजा देती थी खुदा ने? मेरा ज़हन नहीं है? हाँ, हव्वा को क्या सजा दी? तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। और सांप को क्या सजा दी? तू पेट के बल चलेगा। ते पहले किवें चलदा सी? हाँ, ऐसे भी है ना। अगर खुदा ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा तो फिर पहले किवें चलदा सी? पहले इससे मुराद थी कि वो टांगों के साथ चलता था। खुदा ने उसको सजा दी कि तू पेट के बल चलेगा। फिर उसके बाद में हव्वा को सजा दी कि तू दर्द के साथ अपने बच्चे को जन्म देगी। और इसी तरह से आदम को सजा दी कि तू मेहनत, मुशक्कत और पसीने की कमाई खाएगा। तीनों को सजा मिल गई। एक और बात बताऊं, सांप को 2 सजाएं मिली है, एक नहीं मिली। पहले नंबर पर खुदा ने उसकी टांगे खत्म कर दी है। तो खुदा ने कहा कि तू पेट के बल चलेगा और उम्र भर
खाक चाटेगा। उसकी खुराक ही खुदा ने बंद कर दी, उसकी खुराक ही नहीं है कोई, बस मिट्टी खानी, मिट्टी चटनी, मिट्टी बेची रहना उन्हें। हर जानदार के लिए खुराक है, या जैसा कि दरख्त है उसके लिए पता क्या खुराक है। बहुत सारे लोग अपने फसलों में खाद डालते हैं, या वैसे जानदार दरख्त देख लें, उनको जब हम पानी डालेंगे वो ज्यादा खिलेंगे, वो ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। इसी तरह से जानदार जितने भी है, जैसे गाय, भैंस, इसी तरह से जो दूध देने वाले जानवर हैं वो अच्छा चारा खाते हैं, गधा या और जानवर जो है वो मुख्तलिफ खुराक खाते हैं, जो शेर है वो शिकार करके खाता है, बाज उसके लिए खुदा ने अलहदा से खुराक रखी, जितने भी हवा के उड़ने वाले परिंदे हैं उनके लिए दाना रखा खुदा ने, मुख्तलिफ जानदारों के लिए खुदा ने मुख्तलिफ खुराक रखी है। इवन देन इंसान के लिए खुदा ने खुराक रखी है, और इंसान के लिए खुदा ने जमीन से अनाज को पैदा किया है। हर जानदार के लिए खुदा ने खुराक रखी है, और खुराक के लिए इंसान जो है वो मेहनत करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका पेट उसको उभारता है कि वो मेहनत करे, ताकि वो अपने पेट के लिए कुछ मेहनत मुशक्कत करे, कुछ कमाए तो कुछ खाए। तो अजीज भाई और बहनों, हर जानदार के लिए खुराक है, लेकिन सांप के लिए खुदा ने खुराक भी बंद कर दी है। हर इंसान के लिए, हर जानदार के लिए खुराक है। हव्वा को एक सजा मिली, आदम को एक सजा मिली, लेकिन सांप को 2 सजाएं मिली। खुदा ने उसकी टांगे भी खत्म कर दी और खुदा ने उसकी खुराक भी खत्म कर दी। इसी तरह से अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है आदमी अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का दुख उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। कर लो मेहनत, 25,000 तनख्वाह मिलती है, 50,000 की तनख्वाह ते चल जाओ, 50,000 तनख्वाह मिलती है, 75,000 वाली ते चले जाओ, लाख वाली थी भी चल जाओगे, लेकिन जान को सुकून ना हो, उस पैसे का क्या करना है। जिंदगी में अगर सुकून नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं कर सकता। पैसा आराइश दे सकता है, आसाइश दे सकता है, पैसा आपको जिस्मानी सुकून दे सकता है, आप एसी लगवा सकते हैं, आप गाड़ी पर जा सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन ज़हनी सुकून जो है वो यीशु मसीह के पास है। इसलिए यीशु कहते हैं, आए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आराम पाना चाहते हैं, अपनी मेहनत करें, अपना सारा दिन मेहनत करें, शाम को खुदा के पास आ जाए और यीशु से कहे, क्या यीशु तूने कहा है कि आए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसे कहे, आए खुदावंद मैं आ चुका हूं, आए खुदावंद मैं आ चुकी हूं, तू मुझे आराम बख्श। आपकी थोड़ी भी सैलरी होगी, आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, थकावट खत्म हो जाएगी, आपके घर में सुकून होगा, बरकत होगी, रहमत होगी, फजल होगा, घर में परेशानी नहीं होगी। कब? जब आप खुदा के पास आएंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक आखिरी हवाला देखेंगे, दूसरा थेसलोनिकियों का दूसरा खत और उसका 3रा बाब, और 10वीं आयत। जी पढ़े बेटे। और जब हम तुम्हारे पास थे, उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मुश्किल ना हो, वो खाने भी ना पाए। ओए हो, मेरे पीछे पड़े, आखिरी गल है। और जब हम, सबकी आवाज आनी चाहिए, और जब हम तुम्हारे पास थे, उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना
मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि मेहनत ना करो, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। नकम्मा है, घर च काम नहीं करता कोई भी, वो खाने भी ना पाए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं तो कोई मेहनत भी नहीं करता तो मैं घर बह के खांदा रहना वा। बाइबल मुकद्दस का फैसला है कि जो मेहनत नहीं करता वो खाने भी ना पाए। वो मेहनत पढ़ाई में है, वो मेहनत ड्यूटी करने में है, वो मेहनत जॉब करने में है, वो मेहनत हारमोनियम बजाने में है, वो मेहनत तबला बजाने में है, वो मेहनत पढ़ने में है, वो मेहनत मुशक्कत करने में है, वो मेहनत पासर बनने में है। अगर वो मेहनत नहीं करता है तो खुदा का कलाम कहता वो खाने भी ना पाए। उन्होंने घर च खान का भी आर्डर नहीं है, वो घर च खावे भी ना, बल्कि क्या करे, मेहनत करे तो मेरा खुदा उसकी मेहनत में ऐसा अजर देगा कि उसके खाने में भी बरकत होगी, उसके पीने में भी बरकत होगी, और वो जिस काम को हाथ लगाएगा उसके लिए बरकत होगी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है कि मेहनती का हाथ कभी कंगाल ना होगा। जो शख्स मेहनत करता है वो कंगाल, वो कभी किसी को पैसे नहीं धारे मंगेगा, ਉਹਦਾ फोन बैलेंस भी होएगा। ठीक है, कई ने 25,000 तो थले मोबाइल को नहीं है, टच मोबाइल 25,000 तो थले को नहीं। 25,000 का मोबाइल रखा होना तो बैलेंस नहीं विच हुंदा। तनखा पूछो तो 18,000 तो मोबाइल किन्ने वाला, 25,000 वाला। ठीक है, 18,000 अगर सैलरी है, 25,000 का मोबाइल ले लिया, बाकी 7,000 कहां से आया? तो अजीज भाई और बहनों, इन बातों पे गौर करना है, हमने मेहनत करनी है और फिर यीशु के पास आना है। कभी भी मेहनती का हाथ कंगाल नहीं होगा। सो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करते हैं, दुआ मांगते हैं।